Namaste. In this video, I'll be discussing certain very important timelines which have been prescribed under the Union Budget 2017. There are various provisions where the compliance mode has been shifted so that the compliance has to be done within the reduced time. To start with, this budget in my view has proved that time is money, because when you save the time, you will be able to do more work in the remaining time which is saved. So time would be saved of the professionals, of the businessmen, of all the persons who are assessing under the Income Tax Act, and even the income tax officials. First of all, the assessment, the time limits for the assessment has also been reduced with effect from assessment in 1819. Currently, it takes around 21 months from the end of the assessment year for the assessment getting done completed. With effect from assessment year 1819, the set period would be reduced to 18 months, and from 1920 it would be reduced within 12 months. So the drastic reduction in the time of assessment being done, not under only 143(3), that is the normal scrutiny, even the best judgment assessment 144 or reassessment 147, or under the search cases under section 158BC. So the time limit would be squeezed for getting the assessments done. So the assessing officers would be having more time to work upon many other things. Also, the time limit for revised return has been amended. Currently, when a return is filed, it can be revised by up to the end of the next assessment year. Suppose a return is filed for March 16. मान लीजिए एक रिटर्न मार्च 16 की फाइल हो रही है, तो उसकी ड्यू डेट है आपकी जुलाई या सितंबर मार्च 16. उसकी जो रिटर्न रिवाइज हो सकती है वो मार्च 18 तक हो सकती है. बट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1819 जो मार्च 18 की रिटर्न होगी वो फाइल भी मार्च 19 तक हो सकती है और वो रिवाइज भी मार्च 19 तक हो सकती है. द रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड ओनली अप टू द end of that assessment itself. What would be the impacts? Sometimes what happens when a person files his return, जब उसने अपनी रिटर्न फाइल की, तो जब रिटर्न फाइल की तो उसमें कोई मान लीजिए एरर रह गई और उस बेसिस के पास स्क्रूटनी नोटिस आ गया. जब वो नोटिस आया तो नोटिस आने के बाद नॉर्मली जो प्रोफेशनल था या एसएससी था वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर पाता था. बट अब इस केस के अंदर जब ये टाइम लिमिट स्क्वीज हो जाएगी तो ऐसे में रिटर्न रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो टेक केयर व्हाइल फाइलिंग योर रिटर्न इटसेल्फ, एंड आल्सो सी एट द बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इटसेल्फ, से फरवरी मार्च के अंदर, कि अगर कोई एरर तो नहीं रह गई. अगर रह गई है तो रिटर्न को रिवाइज आप उसी साल के उसी असेसमेंट ईयर के एंड तक कर पाएंगे, अगले साल तक नहीं कर पाएंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज अंडर सेक्शन 4480. You know, this 4480 is a presumptive taxation, whereby in the case of an individual HUF or a partnership firm, अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे रहती है और उसका जो डीमिंग प्रॉफिट है वो अपना 8% या उससे ऊपर 10, 12, 20, 30, 40, 50% दिखाता है, तो उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ऑडिट की भी जरूरत नहीं है, अपनी रिटर्न 4480 के अंदर भरता है. ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन देयर वाज अ प्रेस रिलीज व्हिच सेड दैट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश, मोर पीपल, the government was trying to make the country less cash, so more transactions were being taken through other than cash mode. This debit card, credit card, Paytm and others. So they said because there is a transaction charge in there, so in that case if a person is having a turnover which is due to other than cash mode, the deeming rate would be not 8% but 6%. Now the turnover total for this is effective from assessment year 17-18. So suppose in this year, this current financial year, 1st April 2016 to 31st March 17, किसी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से 50 लाख 60 लाख कैश है और 40 लाख बाय चेक और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और अदर इलेक्ट्रॉनिक NEFT है, तो 60 लाख पे वो 8% ले सकता है और 40 लाख के ऊपर वो 6% ले सकता है. बट ये 6% लेने की एक और कंडीशन,
ये 6% लेने की जो एक कंडीशन है, उन्होंने बड़ी अच्छी कंडीशन रखी कि वो जो आपका पैसा चेक से आएगा या डेबिट क्रेडिट कार्ड से आएगा, दैट शुड बी रियलाइज्ड ड्यूरिंग दैट ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). और जिसकी रिटर्न 44AD में जाती है उसका ऑडिट नहीं होता, तो उसकी ड्यू डेट होती है नॉर्मली इट वुड बी 31 जुलाई। तो जो डेबिट क्रेडिट नोट है या ये मैंने क्रेडिट सेल की है, मेरे डेटर से पैसा मेरा 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। जिस अमाउंट का नहीं आएगा उस पर 6% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पर 8% का ही बेनिफिट, उस पर 8% के भी डीलिंग के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। Another very very important amendment is made so that people are filing their return on time. अभी भी आज की डेट में हम असेसमेंट ईयर 16-17 की बात कर रहे हैं, तो मार्च के अंदर भी, फरवरी मार्च के अंदर भी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं फॉर असेसमेंट ईयर 16 एंड इवन 16-17 एंड इवन 15-16, क्योंकि अभी अलाउड है, अगले साल से अलाउड नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दे हैव मेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 234F। उस सेक्शन में उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पर्सन जो अपनी ड्यू डेट से लेट रिटर्न फाइल करता है और वो अगर दिसंबर से पहले अपनी ड्यू डेट के बाद करता है, दिसंबर से पहले करता है, तो उसको 5,000 रुपए की फी पे करनी पड़ेगी। और अगर दिसंबर के बाद करता है, क्योंकि मार्च तक ही कर पाएगा, तो उसको फी देनी पड़ेगी 10,000 रुपए। लेकिन अगर उसकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है, तो ये फी रह जाएगी 1,000 रुपए। अब मान लीजिए कि किसी की ड्यू डेट की रिटर्न 31 जुलाई है और उसने जुलाई में फाइल नहीं की, अगस्त में की, सितंबर में की, तो आप ये मान के चलिए कि उसको 5,000 रुपए की जो ये फी है वो अपनी रिटर्न के साथ ही पेमेंट करनी है। पहले जो इसके अंदर पेनल्टी थी सेक्शन 271F के अंदर, वो एक पेनल्टी थी 5,000 रुपए की, और उस पेनल्टी को इनिशिएट करना पड़ता था। ये फी है, तो इस फी के लिए उन्होंने ऑलरेडी सेक्शन 140A और सेक्शन 143(1) जिसमें प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया कि अगर आपने ये रिटर्न के साथ पेमेंट नहीं किया तो प्रोसेसिंग के टाइम के अंदर ही आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, आपको टैक्स, इंटरेस्ट और फी ये आपको देनी पड़ेगी, इसमें इनिशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अंदर बताया कि 4 करोड़ के करीब लोग रिटर्न भर रहे हैं, तो मेरे अंदाजे से 4 करोड़ में अगर हम कंपनीज और टैक्स ऑडिट और टीपी ऑडिट की बात करें तो उनके अंदर ऑन हायर साइड 1 करोड़ लोग होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम लोग हैं 3 करोड़ पीपल, देयर ड्यू डेट वुड बी 31 जुलाई। तो इतना ज्यादा प्रेशर 31 जुलाई का होगा। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, और साथ ही साथ जो हमारे बिजनेस एसेसीज हैं, जो सैलरीड पीपल हैं, मान लीजिए किसी का सैलरी के अंदर टीडीएस कट गया, जब वो टीडीएस कट गया तो वो ये सोचते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया तो सॉरी, तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर मेरी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड करती है तो मेरे लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, और अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूं तो मेरे को ये फी के साथ बाद में फाइल करना। हम लोगों को नॉर्मली आदत है कि सब काम लास्ट मोमेंट में करने की, अभी टाइम है, मार्च तक फाइल कर लेंगे, बट इस आदत से हमारे हो सकता है लॉन्ग टर्म में बहुत सारी आदतें से हो जाए, हम चीजों को टाइम से करने लग जाए। सो इन माय व्यू अ गुड अमेंडमेंट, प्रोफेशनल्स भी फ्री हो जाएंगे। आपका मार्च खत्म हुआ, जुलाई तक रिटर्न फाइल हो गई, सितंबर तक रिटर्न फाइल हो गई, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपके पास पूरा साल है, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, रिटर्न के ऊपर बेसिस ना रखें। मान लीजिए बिकॉज दिस फी इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, एक इंडिविजुअल है जिसकी रिटर्न 2.5 लाख रुपए से नीचे द ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर वो फाइल करता है तो क्या उसको ये फी लगेगी 1,000 रुपए की? लीगली नहीं लगेगी, बट मेरा रिक्वेस्ट है जब सीपीसी अपने इस मॉड्यूल को, इस फी को जब ऐड करे असेसमेंट ईयर 18-19 से, तो ध्यान रखिए कि हर केस में इसकी डिमांड ना निकाले, बिकॉज द अमाउंट इज स्मॉल बट स्टिल इट वुड बी पेबल बट लीगली नॉट पेबल। तो आई सपोज इसका ख्याल रखा जाएगा, और जिस केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है उस केस के अंदर ये फी नहीं लगनी चाहिए। Another very important amendment related to timelines is regarding the exemption being withdrawn in case the return is not filed by the due date. The first
इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको कि अपनी एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 12A में। हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स किए। एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 12A में रजिस्टर्ड है, उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है सेक्शन 139(4)A में, 139(1) के अंदर में। लेकिन 139(4)A के अंदर मेंशन्ड है कि अगर आपकी रिटर्न 139(4)A में जा रही है तो 139(1) की ड्यू डेट्स की और बाकी सारे एक्ट की जो प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सो इन केस a return is not filed of a charitable trust which is required to be filed under section 139(4)A, ये उन ट्रस्ट को फाइल करनी पड़ती है जो कि बिना सेक्शन 11 और 12 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिए हुए, अगर उनकी टोटल रिसीव्ड इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि करंटली अभी 2.5 लाख रुपए है। अगर किसी की टोटल रिसिप्ट 2.5 लाख रुपए से किसी ट्रस्ट की है और उसने अपनी रिटर्न बाय द ड्यू डेट दैट इज 30 सितंबर तक फाइल नहीं, क्योंकि उसके उसका ऑडिट होता है, उसने फाइल नहीं की तो उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। सो फाइलिंग ऑफ द रिटर्न पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि उसको एक पेनल्टी लगती थी 100 रुपीज पर डे अंडर सेक्शन 272A 272A2 क्लॉज E। 100 रुपीज पर डे की वो पेनल्टी अभी भी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसको वो पेनल्टी 234F में लगेगी, फी 234F में लगेगा या 272A में लगेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज अगर उस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन ही विड्रॉ हो गई तो उसकी रिटर्न 139(4)A में नहीं जाएगी, उसकी रिटर्न जाएगी 139(1). थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहेगी, बट अगर 139(1) में जाएगी क्योंकि उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहा फॉर दैट ईयर। इन दैट केस उसको 139(1) की फी लगेगी, दैट इज 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी मेरे एप्लीकेबल होगा। बट अगर मेरी एग्जेम्पशन है और मैं टाइम से फाइल कर देता हूं तो ये मेरी जो पेनल्टी है 272A2E की पेनल्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Another important amendment done for the first time, government on its own, on the political parties. Political parties की इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 13A में। उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी ऑडिट कराना होता है और अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 139(4)B। जो ये पेनल्टी हमने डिस्कस की 272A2E, दैट इज फॉर रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(4)A एंड 4C, 4B पे नहीं है। तो इस केस में उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी तो उसको ये फी साथ साथ पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करने पे एग्जेम्पशन चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में और पॉलिटिकल पार्टी के केस में विड्रॉ हो जाएगी। पॉइंट टू नोटिस दैट सेक्शन 1023C के अंदर बहुत सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं। उस केस के अंदर उनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी अगर वो रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते। उस केस में उनकी जो पेनल्टी है वो 272A2E के अंदर 100 रुपीज पर डे फॉर लेट फाइलिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कब फी लगनी है, कब पेनल्टी लगनी है इन द केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।